Good morning, dear students. Welcome to the maths class. Myself Rakesh Malviya, PGT Maths, Kendriya Vidyalaya number 1, Bhopal. Today we are going to learn about pair of linear equation in two variable, and this chapter is improvise of linear equation in two variable, है ना, from class 9th. क्लास 9th में भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं. क्लास 8th में आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इवन क्लास 7th में भी आपने पढ़ा होगा. सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सो ऐसी इक्वेशन जो कि कॉम्बिनेशन हो, ऐसी इक्वेशन जो कि कॉम्बिनेशन हो किसका? वेरिएबल का और कांस्टेंट का, और हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस या माइनस मल्टीप्लिकेशन ये यूज हो रहे हो, और दोनों जो साइड से LHS एंड RHS वो सेपरेट हो बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी. सच काइंड ऑफ इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. बट one necessary condition is required. And what is the necessary condition? The power of the variable should be one only. कितने ही वेरिएबल क्यों ना इसमें यूज हो रहे हो, चाहे एक वेरिएबल यूज हो चाहे दो वेरिएबल हो, अगर वन वेरिएबल होगा तो ax plus b equals to 0. That is linear equation in one variable. Okay. और अगर टू वेरिएबल होगा, टू वेरिएबल्स अगर यूज होंगे, so it will be in the form of ax plus by plus c equals to 0. So this is the standard form of linear equation in two variable. This is the standard form of linear equation in one variable. Here a cannot be 0, because if a will become 0, then this equation will reduce to b equals to 0. It means now one इसमें variable नहीं बचेगा. And here if two variable की बात करेंगे, so a cannot be 0. Here a cannot be 0. Okay. And b is also not equals to 0. Why? Because अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो जाता है तो फिर it will reduce to linear equation in one variable. So that is the standard form. वेरिएबल की जो पावर होगी वो जहां भी, चाहे एक से ज्यादा वेरिएबल अगर यूज हो रहे हैं किसी इक्वेशन में, और अगर वहां पे वेरिएबल की पावर 1 है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन हो. ठीक है. हमें पढ़ना है क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है? ऑब्वियसली बात है, पेयर की बात हो रही है तो हम दो लीनियर इक्वेशन लेंगे, है ना. लेट अस से इट इज, है ना, इट इज डिनोटेड बाय a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. So this is the standard form of pair of linear equation in two variable. This is equation 1, this is equation 2. What is the necessary condition? Here a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are constants, and a1 square plus b1 square is not equals to 0 for equation 1. Similarly, a2 square plus b2 square is not equals to 0 for equation 2. Okay. So this is what actually pair of linear equation in two variable. Okay. Next, let us understand the solution of linear equation, pair of linear equation. Solution of pair of linear equation in two variable. How to find its solutions? Okay. So in class 9 we have already studied about the linear solution of linear equation in two variable, and how many solutions are there. If it is pair, it is linear equation in two variable, so infinitely many solutions are there. For the different values of x, you will get the different values of y, or for the different values of y, you will get the different values of x. In case of linear equation in one variable, the solution is unique. Only single solution will be found, because here x plus b equals to 0, then x can be written as minus b upon a. तो सॉल्यूशन का जो जनरली मतलब है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि
जो भी वेरिएबल किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में यूज होते हैं, चाहे वो इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली हो, चाहे वो इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली हो, तो x और y की वो वैल्यूज या वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, मींस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन विल सेटिस्फाइड, मींस LHS इक्वल्स टू RHS अगर हमें मिल जाए वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे, सो है ना, तो वो वैल्यूज क्या कहलाएंगी, सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। अगर हम सपोज एक इक्वेशन में x + 2y = 7, तो यहाँ पर जितनी डिफरेंट वैल्यूज हम x की रखेंगे उतने डिफरेंट आंसर हमें मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम 2, ओके, अगर मैं x को 1 रख लेता हूँ और y को 3 रख लेता हूँ, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि 2 3 6 + 1 7। ओके, अगर मैं यहाँ पे और भी y को 0 रख लेता हूँ, 7, 2 × 0, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया, दैट इज आल्सो 7, दैट इज आल्सो 7। सो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हमें इसके ऐसे मिल सकते हैं। फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। ओके, नेक्स्ट, how to find the solution of pair of linear equation, how to find the solution of pair of linear equation, that is very important। okay, तो solution जो find करते हैं हम pair of linear equation का, उसके दो methods हैं हमारे पास। सबसे पहले है that is graphical method, and graphical method is known as practical approach। इसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। सेकेंड वन इज अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। In algebraic method we are having 3 methods to find the solution of the pair of linear equation। method number 1, substitution method। number 2, elimination method। and number 3, cross multiplication method। So we are having basically 2 methods are there. One is graphical method, second one is algebraic method. In algebraic methods we are having 3 methods: substitution method, elimination method and cross multiplication method। Okay, cross multiplication method जो है इस साल के लिए डिलीट किया गया है, लास्ट ईयर भी इसे डिलीट किया गया था और इस साल भी इसे डिलीट किया गया है ड्यू टू कोविड सिनेरियो। ओके, तो हम यहाँ पर अभी ये 3 मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि क्या हर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है। इफ यू आर हैविंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मींस यू आर हैविंग 2 इक्वेशंस, क्या हम उसको देखते से ये बता सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल भी है कि नहीं है, और है तो फिर कितने सॉल्यूशंस हैं, तो वो क्या कंडीशन होगी, उन कंडीशन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 is equation number 1, and second equation is a2x plus b2y plus c2 equals to 0। let us say this is equation number 2। okay, so conditions किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे या एक से ज्यादा होंगे, इट डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द constants, means a1 b1 c1 a2 b2 and c2। okay, so condition number 1, if a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, इस केस में हमें क्या मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन हमें फॉर्म होगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस सिंगल सॉल्यूशन, विल गेट यूनिक सॉल्यूशन, है ना। और इस केस में जो हमें लाइंस मिलेगी वो कैसी लाइंस मिलेगी, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस।
इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेदर द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल और इट इज इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल, इफ यू प्लॉट द ग्राफ देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। हमें हमेशा क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये स्ट्रेट लाइन अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मींस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो फिर हमें जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन तो होगा दोनों का, लेकिन दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी। वी विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, मतलब कि अब वो सिर्फ एक ही ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू होगी जो कि पॉसिबल है दोनों के लिए, जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो एक साथ दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों इक्वेशन में LHS इक्वल्स टू RHS बन जाए, दैट विल नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ कंडीशन 2 इज condition 2, if a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, means the है ना, a1 upon a2 equals to b1 upon b2, या not equals to था, लेकिन अगर अब इक्वल हो जाए बट c1 upon c2 के इक्वल ना हो, देन हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशंस। एक भी सॉल्यूशन हमें ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइंस होंगी वो कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस। क्योंकि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जब नहीं करेगी तो हमें कोई भी कॉमन पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। सो इन सच केस, है ना, वी विल हैव नो सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. Okay, now third condition is if a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, so in that case we will have infinitely many solutions, infinitely many solutions। infinitely many solutions, और इस केस में जो लाइंस होगी वो कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी, मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ जब बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी उसी के ऊपर उसी को ओवरलैप करते हुए ही जाएगा, मतलब वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करेंगी, दैट है ना, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, सो दीज आर द थ्री सिचुएशन, है ना, इन दैट केस वी विल हैव द सॉल्यूशन, इन सेकंड केस है ना नो सॉल्यूशन, एंड इन थर्ड केस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब हम किसी भी दो इक्वेशन को देखकर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखकर हम तुरंत बता सकते हैं कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा भी के नहीं। कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे ये हम बता सकते हैं, कब यूनिक मिलेगा, कब एक से ज्यादा मिलेंगे, कब पैरेलल लाइंस होगी। और जब हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जहां सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो सॉल्यूशन हमें कौन सी कंडीशन में मिल रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन में। सेकंड में नो सॉल्यूशन, तो सेकंड वाली कंडीशन में जो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, एंड इन फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो बच्चों जब आपसे पूछा जाए कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, तो कैसे बताएंगे कि जब हमें सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो, लेकिन अगर हमें सॉल्यूशंस मिल रहा है इसका मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। ओके, तो यहां पर भी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। Okay. So next, let us take a note. So next,
let us understand how to find the solution by graphical method. ग्राफिकल मेथड से हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे और एक क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे. तो ग्राफिकल मेथड से पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं. ग्राफिकल मेथड, graphical method. Let us have a pair of linear equation. First equation is 2x plus y minus 6 equals to 0. Let us say this is equation number 1. And second equation is 4x minus 2y minus 4 equals to 0. This is equation 2. Okay. सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन के सेपरेटली एक साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, और फिर देखते हैं दोनों कहां इंटरसेक्ट करती है. इसके लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 के लिए हम सुटेबल सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं फॉर इक्वेशन 1. और आप दो या दो से ज्यादा सुटेबल सॉल्यूशन ले सकते हैं, कम से कम दो सॉल्यूशन जरूर लेंगे हम. ठीक है, ज्यादा ज्यादा 3 ले लीजिए बस, है ना. तो दो सॉल्यूशंस हम लेते हैं. सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए 2x plus y minus 6 equals to 0. तो यहां से y को क्या लिख सकते हैं, y equals to 6 minus 2x. RHS में जाएगा तो ये minus 6 plus 6 and 2x minus 2x. Okay, so let us find out the suitable solution for this equation. Okay, here x and this is y. If you subtract x is 0 over here, then y will become 6. If you substitute x is 2 over here, y is 2. If you substitute x 3, then y will become 0. Okay, so let us say these are the suitable solutions for equation 1. In a similar way, let us find out the suitable solution for equation 2. For equation 2, what is equation 2? That is 4x minus 2y minus 4 equals to 0. So here 4x minus 4 equals to 2y, or this y can be written as, it can be divisible by 2, so that is 2x minus 2. Okay, so let us find out the suitable solution for this equation x and this is y. Let us say if you substitute x is 0 over here, then it is minus 2. If you substitute x is 2 over here, then it is 2 to the 4 minus 2 plus 2, है ना. And if you substitute 3 over here, then 3 to the 6 minus 2, that is 4. So you'll see 2 comma 2 here also 2 comma 2. So this is the common solution for both the equation. If we plot the graph of this equation, both the equation will intersect at 2 comma 2. कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आप ग्राफ सीट पे, है ना, ग्राफ सीट पे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आसानी से. सबको ग्राफ प्लॉट करना आता है, क्लास 9th में आप ग्राफ प्लॉट करना सीख चुके हैं. ओके, सो हाउ टू प्लॉट द ग्राफ. दिस इज एक्स एक्सिस. लेट अस से इट इज 1 2 3 4 5. Here it is 1 2 3 4 5 6. Positive axis minus 1 minus 2 minus 3. Negative x-axis minus 1 minus 2 minus 3. This is negative y-axis. Okay, so for first equation x is 0, y is 6. On entire y-axis x coordinate is 0. So first coordinate is this one is 0 comma 6. Second is 2 comma 2. X is 2, y is also 2, so it will be over here. Okay, now third is x is 3, y is 0, so it will be over here. Okay, now we plot the graph, so this will be like this. Okay, so ये 2 comma 2 के हमें इंटरसेक्शन मिल गया. Okay, सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं इसी तरीके से, तो सेकेंड इक्वेशन में पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 comma minus 2. Means x is 0, y is minus 2, so it will be over here. Second is 2 comma 2, it will be again over here. And third is 3 comma 4. X is 3, y is 4, so it will be over here. Okay, and if you plot the graph, so it will be intersecting this. So this 2 comma 2 is the graphical solution, or what we can say common solution for both the equation. Okay, so this is the method to find out the solution of the pair of linear equation with the help of graphical method. Okay.
Okay, so next let us start with elimination method first. algebraic method में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे? इट इज वेरी सिंपल मेथड। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले हम अलजेब्रिक मेथड में क्या पढ़ने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बहुत ही आसान है। हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसे करते हैं। लेट अस हैव अ एग्जांपल क्वेश्चन दैट इज 3x - y = 2 इज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन इज x + 2y = 3। सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? जैसा इसका नाम है बस वैसे इसका काम है। हमें किसी भी एक इक्वेशन से, है ना, चाहे वो इक्वेशन 1 आप ले सकते हैं, चाहे इक्वेशन 2 ले सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, चाहे हम x की निकालें या y की निकालें, और फिर जिस इक्वेशन से निकाल रहे हैं उसको छोड़कर जो दूसरी इक्वेशन बची है उसमें हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो दूसरे टाइम वाली इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन किया, दैट विल कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल फॉर्म। और वन वेरिएबल फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गई तो आसानी से हमें उस एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और वो वापस हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरी इक्वेशन की वैल्यू, दूसरी इक्वेशन वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, तो किससे करें? हम इक्वेशन 1 से करें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या किया हमने? 3x - y = 2 है, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x, इस 2 को इधर लेके आएंगे तो -2 एंड दिस -y विल बिकम +y। ओके, सो y = 3x - 2। ओके, तो सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है इसलिए किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम? 2 में। इन इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? नाउ दिस इंप्लाइज x + 2, व्हाट इज y? y is 3x - 2 = 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम x + 3 * 2 = 6x - 4 = 3। ओके, so this implies this is 7x = 3 + 4, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, and now it will become 7x = 7 and x = 1। 7 7 gets cancelled। ओके, तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमें वेरिएबल के लिए x = क्या मिल गया? 1। अब इसको हम वापस कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? चाहे हम इक्वेशन 1 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, बट बेटर है क्योंकि y की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 3x - 2, तो यहां रख देंगे। दिस इंप्लाइज y = क्या है? 3x - 2। हम अगर हम x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 × 1 -2, so y = also 3 - 2, y = 2। so this is substitution method। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगेन कैसे करना है? किसी भी एक इक्वेशन से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको किसी दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और बस सब्स्टिट्यूट करके हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू में मिलेगी। अगर हम x के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो y की वैल्यू मिलेगी, y के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x की वैल्यू मिलेगी। ओके, और फिर वापस उसको हम उठा के रख देंगे जहां हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, तो गेट द वैल्यू ऑफ द अनदर वेरिएबल। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इट इज वेरी सिंपल। ओके, next one is elimination method। elimination method again this method is also just like its name, elimination। So we how to eliminate any one variable from any one variable। If you able to eliminate any one variable, so automatically फिर second variable की value निकल आएगी। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है? लेट अस से वी आर हैविंग इक्वेशन a1x + b1y = c1 and second equation is a2x + b2y = c2। तो
ओके, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, या तो x वेरिएबल को करेंगे या y वेरिएबल को। एंड इसका तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसे करेंगे? इट इज वेरी वेरी सिंपल। हम किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे b1 है, तो अगर मैं इसको b2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ b1 b2y हो जाएगा, और अगर मैं इसे b1 से मल्टीप्लाई करता हूं सेकंड इक्वेशन को, तो इट विल बिकम b1 b2y। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएंगे जब हम इनको माइनस कर देंगे। इन अ सिमिलर वे अगर हम x का मल्टीप्लाई करते हैं तो x के कोएफिशिएंट को सेकंड इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के x कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरीके से हम किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं, और बस उसके बाद हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या फिर साइन चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से वो पर्टिकुलर वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ना। तो लेट अस हैव एक एग्जांपल। ओके, so first equation is x by a plus y by b equals to 2, and second equation is ax minus by equals to a square minus b square. This is equation number 2. This equation can be simplified. Equation number 1 can be simplified in such a way that this can be written as LCM लेंगे bx plus ay equals to this can be written as 2ab, because whole LCM AB आएगा, AB can be cross multiplied with 2, then it will become 2AB. So now it is equation number 1, it is equation number 2. अब हम किसके कोएफिशिएंट इक्वेट करें, इट इज अप टू यू। अगर आप x x से इक्वेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को b से करेंगे, और अगर आप y y को इक्वेट करना चाहते हैं तो सेकंड इक्वेशन को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट को b से करेंगे। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिनके कोएफिशिएंट हमने जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम किए हैं, अगर उनके सेम साइन है तो ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट साइन है तो हम ऐड करेंगे। बस अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट साइन है तो फिर ऐड करेंगे। ओके, तो यहां पर हम क्या कर लें, इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई कर ले। लेट अस equate the coefficient of y, so multiply equation 1 by b and equation 2 by a, and adding एड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, अगर यहाँ पे प्लस साइन होता, यहाँ पर भी प्लस साइन होता तो फिर सब्ट्रैक्ट करते। दिस थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड। ओके, सो नाउ LHS से LHS ऐड होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, RHS से RHS ऐड होगा। तो इक्वेशन 1 को अगर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, सो इट इज b टाइम्स bx प्लस ay। ओके, ये LHS इसका कंप्लीट हो गया। RHS को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS क्या हो जाएगा, a टाइम्स सॉरी सेकंड इक्वेशन का LHS क्या है, ax माइनस by, तो उसको हम a से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, सो दिस इज a टाइम्स ax माइनस by। ओके, इन अ सिमिलर वे फर्स्ट इक्वेशन का जो RHS है दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद b, सो इट विल बिकम 2ab स्क्वायर, प्लस सेकंड इक्वेशन का जो LHS है RHS है दैट विल मल्टीप्लाइड बाय a, सो दिस कैन बी written a टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, so simplify करेंगे, so this implies it will become b square x plus aby. Similarly, this is a square x minus aby, and here you will find it is 2ab square plus a cube minus ab square. Okay, so this aby minus aby plus aby gets cancelled, and here x can be common. b square x plus a square x is left, and here it is 2ab square minus ab square can be written as ab square plus a cube. Okay, so here x can be common, so x is common, then it will become b square plus a square, and here a is common, so it will become again b square plus a square. So b square plus a square, b square plus a square gets cancelled, so
हियर वी विल हैव x इक्वल्स टू a। एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई है और अब ये वैल्यू हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन नंबर 1 और इन इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो पुट एक ही में कर लेते हैं, फर्स्ट में कर लेते हैं पुट x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये b इंटू a प्लस ay इक्वल्स टू 2ab और ay इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2ab माइनस ए बी, बिकॉज बी इंटू ए बी, ए बी अगर उधर शिफ्ट करेंगे आरएचएस में तो इट इज माइनस ए बी, देन दिस इंप्लाइज ए वाई इक्वल्स टू ए बी, ए गेट्स कैंसिल, y इक्वल्स टू b। So what is the solution? What is the solution? X equals to a and y equals to b is the solution of that particular pair of linear equation with the help of elimination method। ओके तो यहां से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो हमारे तीन मेथड इस साल के लिए हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये तीनों मेथड के हमने क्वेश्चंस भी किए और वो तीनों मेथड में हम क्या करते हैं ये भी हमने सीखा। ओके तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।